Good morning, friends. Today, I, Pawan Sama, going to discuss very important concept, that is electrolysis laws. These two laws, Faraday first and Faraday second law. Or in last lecture, I discussed electrolysis product or what happened in electrolysis. I just repeat it. क्या करते हैं? What we do? We take two electrode, generally inert electrode, and also deep into a electrolytic solution. We pass electricity. Electrolytes convert into cation and anion. Cation undergo reduction at cathode. Cation undergo reduction at cathode. Anion undergo oxidation at anode. Or you can say this cation, that is oxidizing agent, this is a reducing agent. Or you simply say in electrolysis there is a redox reaction take place. अब क्वेश्चन ये है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है कैथोड पे और एनोड पे. देखो ये कैथोड पे कितना डिपॉजिट होगा, कितना एनोड पे डिपॉजिट, ये डिपेंड करेगा उसमें कितनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास की है, उसी बेस पे है फर्स्ट लॉ, दैट इज फेरेडे. एक साइंटिस्ट था जिसने लॉ दिया था फेरेडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. फर्स्ट यू राइट स्टेटमेंट क्या है? मास द amount of substance deposited, or also you can liberate, deposited at electrode is directly depend upon electricity passed through it. जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है उसी से हमें क्या पता लग जाएगा? मास डिपॉजिट हुआ. और ये इलेक्ट्रिसिटी हम किसकी टर्म में एक्सप्लेन करेंगे? चार्ज की टर्म में. किसकी टर्म में? चार्ज. यू मे टेक मास के लिए सिंबल दैट इज W. दैट डिपेंड अपॉन व्हाट? चार्ज पास थ्रू इट, दैट इज Q. एंड हियर this equation 1, W Provost constant की जगह I write this constant, that is Q. This equation second, and this Z, it is electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent. Or simply, in short way, I say EC, electrochemical equivalent. अब many times ये define करवा जाता है what is electrochemical equivalent. इसको we can define like this. Now if Q charge, 1 coulomb charge is passed through the electrolyte, if Q is equal to 1, then equation 2 become क्या हो जाएगी? 1 रखेंगे तो what will be there? W is equal to Z into में 1, और simply that is W is equal to Z. तो ये अब आपकी क्या होगी? एक स्टेटमेंट होगी, इसकी डेफिनेशन होगी EC की. क्या होगी? मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन 1 coulomb charge is passed through the electrolyte. You can write definition of this EC, electrochemical equivalent. So it is equal to amount or mass deposited at electrode when 1 coulomb charge is passed through it. Electrolytic solution through it, you can say. Like this we can explain electrochemical equivalent, EC, very important term. Now
take further. Now we know W is equal to ZQ. We know it. And also we know I, current, is charge upon my time. Student, charge upon my time. Q, that is charge. T, that is time. Or I, that is current. Charge unit is coulomb. Time unit is second. Or this current unit is ampere. Symbol लिख देंगे ampere A. This is coulomb. That is second. Or we can say Q can be written as I into my T. I, that is ampere. Time, that is second. Ampere into second, that is coulomb. 1 coulomb is equal to ampere into second. So in place of, suppose this equation A, in place of Q we can write I into my T. So this is W is equal to Z I T. That is very wonderful formula for numericals. W is equal to Z I T. अब थोड़ा सा इसको आगे और प्रोसीड करते हैं. W is equal to Z I T को कैसे लिखिए. W is equal to Z I T. देखो, we are having this formula. W is equal to Z I T. This is the formula Z. And also we have this formula W is equal to Z Q. Or Q is equal to 1 coulomb. Then W is equal to also Z. We know it. ये भी हम जानते हैं. इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं. ठीक है. W is equal to Z I T. अब देखो क्या है. अब आपको कैथोड के ऊपर देखो, एक क्या था कैथोड और 1 क्या था एनोड. और कैथोड पे कैटायन की रिडक्शन होती थी. और कितना मास डिपॉजिट होगा, कितना मास डिपॉजिट होगा. फेरेडे ने क्या कहा है, जितनी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें. अब हम ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. वी टेक वन एग्जांपल. इफ सोडियम आयन, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट NaCl ले रहे हैं, NaCl एक्वा सॉल्यूशन, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे डिसोसिएट इनटू व्हाट, Na पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस. अब सोडियम आयंस की क्या होगी, रिडक्शन होगी ना. और कैसे होगी, कैथोड पे कैसे रिएक्शन होती है. देखो, सोडियम आयंस गेट इलेक्ट्रॉन, दिस कन्वर्ट इनटू व्हाट, Na, सोडियम मेटल. अब आपको पता है इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना. और वो 1 मोल सोडियम एटम को क्या करवा रहा है, डिपॉजिट. कहने का मतलब इससे क्या पता लग रहा है आपको, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल सोडियम एटम इज डिपॉजिटेड. और आपको पता है 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मास किसके बराबर होगा, उसके मोलर मास के बराबर. और यू कैन सी इट कैन आल्सो रिटन एज इट्स मोलर मास 23 ग्राम. और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो 1 इलेक्ट्रॉन से, इधर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19. 2 का कितना हो जाए, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. 3 का कितना, 3 से मल्टीप्लाई. अब आपको किसका कैलकुलेट करना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन. 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाए, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इंटू में 6.022 इंटू 10 की पावर 23. और इनको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 96500 कूलम. मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया. दिस इज 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज. कितना है, 9650 कूलम. और इसी को हम क्या कहते हैं, 1 फैरेडे कहते हैं. क्या कहते हैं, 1 फैरेडे. और हियर अब आप यूं कह सकते हैं 1 मोल सोडियम एटम का 23 ग्राम
23 ग्राम मास डिपॉजिट करने के लिए आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है? दैट इज 9650 कूलम इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। कितने कूलम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे? तो 23 ग्राम मास सोडियम का डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर। इसका मतलब ये है, क्लियर होगी ये बात। और इसी को हम क्या कहते हैं? 1 फैरेडे भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1 फैरेडे भी कह सकते हैं। 1 फैरेडे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी 23 ग्राम मास को डिपॉजिट करने के लिए। अब एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, जनरलाइज डिस्कशन करते हैं। अब जनरल डिस्कशन देखिए, देखो एक जनरलाइज इक्वेशन लेता हूं मैं, मेटल आयंस लेता हूं मैं जनरल। इसमें n इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, रिडक्शन कराओगे कैथोड पे, और ये क्या हो जाएगा ms। ठीक है, अब यहां से क्या पता लग रहा है? n मोल इलेक्ट्रॉन्स कितना मास डिपॉजिट करे? 1 मोल मास, 1 मोल ऑफ दिस मास डिपॉजिट कर रहे हैं। अब बोलो, अब इसका जो मास होता है 1 मोल का, इसके मोलर मास के बराबर होता है। इसका मोलर मास लेट मान लेते हैं A ग्राम, इसका मोलर मास A ग्राम। और n मोल देखो, अभी देखो 1 मोल का चार्ज कितना था? 9650 कूलम था। 2 मोल का कितना? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और n मोल का कितना? n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो n मोल के अंदर कितना चार्ज होगा? n इंटू में 9650 कूलम। इतना चार्ज डिपॉजिट करोगे, सॉरी सप्लाई करोगे, तो A ग्राम मास क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। और 1 ग्राम 1 कूलम करोगे तो व्हाट विल बी दैट? A अपॉन में n 96500। क्लियर? देखो अब हमारी डेफिनेशन है, जब हम 1 कूलम चार्ज पास करते हैं तो मास और जेड की वैल्यू क्या आती है? बराबर। तो मतलब 1 कूलम पे इतना मास डिपॉजिट होगा ना, तो इतना डिपॉजिट होगा ना मास, और ये किसके बराबर है? जेड के बराबर भी है। तो इसका मतलब इसको मैं यहां रख सकता हूं, यहां रखो या यहां रखो, बात एक ही है। तो अब इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं इक्वेशन में। तो व्हाट विल बी दैट? दैट इज, ये क्या हो जाएगा? तो इसको मैं यहां रख देता हूं जेड की जगह, तो W इज इक्वल टू व्हाट? A अपॉन n 96500 और दिस इज I इंटू में T। ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई W इज इक्वल टू ZIT की, जो न्यूमेरिकल्स में फ्रीक्वेंट यूज की जाएगी। W इज इक्वल टू ZIT। देखो W इज इक्वल टू ZIT। This is the extended form of this formula. W is equal to ZIT. ZIT. और न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले को हम फ्रीक्वेंट यूज करेंगे। तो अब देखो क्या क्या है। W यू नो मास डिपॉजिटेड, इसको मास को हम जनरली ग्राम्स में कैलकुलेट करेंगे। A क्या आपका? मोलर मास है, मोलर मास, जो किस में रहता है? ग्राम्स के अंदर। I क्या है? करंट है, जिसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। और ये क्या है? टाइम है, जिसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड में। और ये क्या है? ये किसके बराबर होता है? 1 फैराडे की वैल्यू है। और n क्या है? वैलेंसी फैक्टर है, वैलेंसी फैक्टर। दिस इज वैलेंसी फैक्टर। क्लियर? अब वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये हमारा इश्यू है। चलो उससे पहले थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर देते हैं। A बाई N। A क्या है? मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। ये किसके बराबर होता है? इक्विवेलेंट मास के बराबर। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका होता है मोलर मास अपॉन में n वैलेंसी फैक्टर। तो हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। तो इन प्लेस ऑफ A बाई N
आई कैन राइट इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास के लिए मैं सिंबल क्या दे देता हूं, ई दे देता हूं। तो ऑल्सो वी कैन राइट लाइक दिस वन अनदर फॉर्म, W इज इक्वल टू वाटर E I T अपॉन में 96500। दिस इज अनदर फॉर्म, दिस फॉर्म इज थर्ड। अच्छा जी, अब मैं आपको ना वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे हमारी यहां जो प्रॉब्लम होगी उसमें आपको जनरली क्या दिए जाएंगे, सोल्ट दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, सोल्ट। और सोल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर मींस n कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आप क्या चेक कर लेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव, कोई भी ले लो एक ही बात है, इक्वल आएंगे नेगेटिव चार्ज, साइन अलग होंगे, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वन एग्जांपल, सपोज आपको दे दे K2SO4 दे दे, क्या दे दे, K2SO4। देखो K पे क्या चार्ज होता है, +1 होता है ना, और ये क्या है 2, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज यहां से क्या आएगा, 2 आ गया ना। टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या है, इक्वल टू 2, और इस पे चार्ज क्या था, माइनस, तो टोटल नेगेटिव चार्ज क्या है, -2। टोटल नेगेटिव चार्ज क्या आ गया, -2। ठीक है, आपने मैग्नीट्यूड लेना है, चाहे टोटल पॉजिटिव का लो चाहे नेगेटिव का लो। और देखो एक बात, जैसे ZnSO4 दे दे, क्या दे दिया, ZnSO4, तो यहां से n की वैल्यू पता लगी ना, क्या आ रही, 2। इसमें देखो ZnSO4 में इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ Zn2 पे यहाँ क्या है, -2, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाए, 2 आ जाए। इस तरह से यू कैन कैलकुलेट दी वैलेंसी फैक्टर। अब सेकेंड लॉ की तरफ आते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। सेकेंड लॉ देखिए जरा, सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ, ये क्या कहता है, ये यूं कहता है, अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल लाइक दिस, डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, अरे मैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स ले ZnSO4। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया AgNO3 लाइक दिस, इसमें आपने ले लिया CuSO4। तो वी हैव टेकन डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल विद डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, और इनको कनेक्ट करा देते हैं इन ए सीरीज, कनेक्ट करा देते हैं इन ए सीरीज लाइक दिस। लाइक दिस, पॉजिटिव और दिस नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह से अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, क्या लिए, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको हमने कनेक्ट करा दिया इन सीरीज, तो ये फेरेडा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, व्हेन डिफरेंट electrolytic solutions are connected in a series, and same electricity is passed through them, same electricity pass connected in a series, then masses of substance at various electrodes
is directly proportional to equivalent mass. ये इस सेकंड लॉ की क्या है, स्टेटमेंट है फेरेडे लॉ की. अब इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म देता हूं. इसको मैथमेटिकल फॉर्म देखिए. मैथमेटिकल फॉर्म क्या कहा, मास डिपॉजिट हो रहा है, डेट किस पे डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट मास पे. तो ये हमारा, और अलग अलग के लिए जैसे W1 किस पे डिपेंड करे, E1, W2 क्या होगा, E2, और इनको डिवाइड कर देंगे तो ये कम्स आउट टू बी W1 अपॉन में W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन में E2. ये हमारा एक न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला आ गया है, W1 अपॉन W2 E1 अपॉन में E2. अगर प्रूफ देखना चाहते हो तो देखिए इसका प्रूफ क्या है. प्रूफ देखिए इसका कैसा है. देखो W1 क्या है, मास है, और ये क्या हो, Z1 क्या हो जाएगा, Q1, W2 क्या हो जाएगा, Z2 Q2. और अब क्या कहा है इसमें, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास में Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q2. इनको हम क्या करें, सिंपली Q, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो Q1 की जगह क्या कर दो Q, और इनको हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें. Q से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो दिस कम्स आउट टू बी W1 अपॉन में W2, और ये क्या हो जाएगा, Z1 अपॉन में Z2. ठीक है. और देखिए Z क्या है, Z को आप क्या लिखते थे, देखो Z को आप ये लिखते थे, इधर आ, Z क्या था, Z इज इक्वल टू A अपॉन में N 96500. A बाई N क्या होता है, E होता है ना, तो वी कैन राइट Z इज इक्वल टू E बाई 96500. ठीक है. Z1 क्या हो जाएगा, Z1 ये क्या हो जाएगा, E1, Z2 क्या हो जाएगा, समझते हो. तो इसको कैसे लिखते हैं, W1 अपॉन में W2 इक्वल टू Z1 की जगह क्या रखें, E1 अपॉन में 6500, और Z2 क्या हो जाएगा, E1 की जगह क्या हो जाएगा, A2, और ये ऊपर चला जाएगा 9650. कैंसिल दिस विद दिस कैंसिल, तो दिस कम्स आउट टू बी W1 अपॉन में W2 इज इक्वल टू E1 और E2. आपने जस्ट फॉर्मूले को रिमेंबर करना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रूफ दे सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस लॉ. स्टूडेंट्स सी वन न्यूमेरिकल ऑन दिस लॉ. देखो क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट ए कैथोड. तो बोलो क्या निकालना, व्हाट यू आर टू कैलकुलेट, मास निकालना किसका, सिल्वर का. यू आर टू कैलकुलेट इट. व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास, करंट दे रखा है ना, I, व्हाट इज दैट, 2 एम्पियर. और आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या दे रखा है, AgNO3. और Ag को ब्रेक करोगे तो आपको पता है कैसे ब्रेक होगा, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव. चार्ज क्या है, प्लस 1 आएगा यहाँ, तो N की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, डेट N की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई. तो सोल्यूशन, और 15 मिनट टाइम दे रखा है, टाइम दैट इज गिवन 15 मिनट सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो दिस इज सेकंड टाइम W. और फॉर्मूला क्या आपको पता होगा, W इज इक्वल टू ZIT, और दिस इज W. Z को एक्सपेंड करो A अपॉन में N 96500, और दिस इज I इंटू में T. ये आपने कैलकुलेट करना है. A एटॉम मोलर मास दे रखे ना, पुट करेंगे वैल्यू, बस A की वैल्यू क्या दे रखी है, 108. I करंट 2 एम्पियर, टाइम 15 इंटू में 60 सेकेंड. N की वैल्यू क्या है, 1, एंड दिस इज 9650. तो लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर. वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, और दिस न्यूमेरिकल्स came in 2017 दिल्ली बोर्ड एग्जाम. ठीक है.
So you can do like this. And this is all about today lecture. Thank you from my side. Next thing will be discussed in next video.